thank you all once again for joining in this morning. और सभी को धन्यवाद कि आप सभी लोग जुड़े हो इस सुबह। We greet you in the name of our Lord and Savior और Jesus हम आप Christ. सभी का स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम से। We thank the Lord for this wonderful day, और धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का इस सुंदर दिन के लिए। and we believe that God is going to speak to us this morning. और विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हम सभी लोगों से बातें करने वाले हैं इस सुबह। Amen. आमीन। Let us pray right now. आइए हम सभी लोग प्रार्थना करेंगे। Now, Father, in Jesus' name, we thank you. और धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपका सभी चीजों के We लिए। cover everyone under the blood of Jesus. और सभी को परमेश्वर तेरे लहू से ढकते हैं। Father God, as we start this morning, we start this day, प्रभु जैसे हम इस दिन की शुरुआत करते हैं, we believe, Lord, that we are going to encounter you. We are going to encounter supernatural. We are going to encounter everything that you have planned for us this morning. विश्वास करते हैं परमेश्वर जो भी आपने योजना बनाई है हम उसमें परमेश्वर हम पूरा करेंगे। हम आपसे मेल मिलाप भी करेंगे और लोगों की चीजों से हम मेल मिलाप भी करेंगे। We trust in you this morning for everything that has never happened with us. This morning, Lord, you are going to release it. You are going to do it. वो विश्वास करते हैं कि जो भी अभी तक नहीं हुआ वो आप पूरा करोगे इस सुबह। Thank you, Master. धन्यवाद करते हैं Give you all the praise and glory. सारी स्तुति सारी महिमा देते हैं In Jesus' name we और pray. यीशु मसीह के नाम से Amen. आमीन। Amen. So it's a wonderful morning, and we thank the Lord for this beautiful day that He has made. और बहुत ही सुंदर दिन है और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ये दिन बनाया है। God has protected us, each one of us, through this COVID-19 situation, throughout the whole week, all the days. He is good. He has protected us. और परमेश्वर ने हम सभी लोगों की सहायता किया है पूरे इस कोविड की सिचुएशन में। हर एक परिस्थिति में परमेश्वर ने हमें बचा के रखा है। So many testimonies, so many things that God has done into our lives. और इतनी सारी गवाही और इतनी सारी चीजें परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है। And only God can do it because He is in complete control. और सिर्फ परमेश्वर ही कर सकते हैं क्योंकि पूरा नियंत्रण परमेश्वर की ओर है। Amen. आमीन। God is in complete control. परमेश्वर पूरे नियंत्रण में है। And He's going to do whatever He wants to do into our life. और जो परमेश्वर चाहते हैं वही चीज को वो करेंगे हमारे जीवन में। Amen. आमीन। So today, let us get into the Word. और आइए हम वचन में जाएंगे। And this is what the Lord speaks this morning. और परमेश्वर यही चीज को बात कर रहे हैं। And we will dig into the Word of God. और हम परमेश्वर के वचन में और गहरे में जाएंगे। But today's topic would be waiting upon the Lord. और आज का संदेश ये है परमेश्वर पर रुकना। What exactly is waiting on the और Lord? परमेश्वर पर रुकना का मतलब क्या होता है? And let's see what the Word says about it. और आइए परमेश्वर के वचन में देखेंगे कि वचन क्या कहता है। Now you, I, and we all go through the process of waiting. अभी हम सब लोग, आप और हम सब लोग जो है ऐसे रुकने के प्रोसेस में जाते हैं। Okay, there's a process of waiting in everything. हर एक चीज में हम रुकते हैं। Okay, some people they wait on other people. और कुछ लोग जो है वो दूसरे लोगों पर रुकते हैं। Okay, some people they wait on time. और कुछ लोग जो है वो समय पर रुकते हैं। Okay, some people wait on other people. और कुछ लोग जो है वो दूसरे लोगों पर रुकते हैं। Okay, they wait for other people to do something for them. और वो रुकते हैं कि दूसरे लोग उनके लिए कुछ करें। Some people say आज का टाइम अच्छा नहीं है, कल अच्छा है. They wait on time. और कुछ लोग कहते हैं कि आज का समय अच्छा नहीं है, कल हम करेंगे, तो वो समय के ऊपर रुकते हैं। But we, as mature sons and daughters in Christ, लेकिन हम समझदार बेटा और बेटी होने के नाते we neither wait on people, हम लोगों पर नहीं रुकते हैं। we neither wait on time, हम समय पर भी नहीं रुकते हैं। because all time is good for us in Christ, क्योंकि हमारा हर समय अच्छा है परमेश्वर में। and we don't trust people, so we don't wait on them. We don't wait on people. और हम लोगों पर नहीं रुकते हैं, तो हम लोगों पर नहीं निर्भर करते हैं। But those who trust in the Lord, लेकिन जो परमेश्वर पर भरोसा करता है we wait upon the Lord. और परमेश्वर पर ही रुकता है। Hallelujah. हालेलुया। We wait upon the Lord. हम परमेश्वर पर रुकते हैं। Come on, touch somebody. Tell your neighbor that you and I, we are waiting upon the Lord. और किसी को छू कर कहिए, अपने बाजू वाले को छू कर कहिए, हम परमेश्वर पर रुकते हैं। Come on, you and I are waiting upon the Lord. और आप और हम परमेश्वर पर रुके हुए Say, हैं। I am waiting upon the Lord this morning. और कहिए मैं परमेश्वर पर रुका हुआ हूँ इस सुबह। Many of us, what we do is we are habituated to having Maggi noodles. और हम में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हमें आदत पड़ गई है मैगी नूडल्स
खाने के लिए। Everything we want instant. और हर चीज हमें तुरंत चाहिए। Anointing we want instant. और अभिषेक हमें तुरंत चाहिए। Signs, wonders, miracle we want instant. और चिन्ह चमत्कार भी तुरंत चाहिए। Our prayer should be answered instantly. और हमारी प्रार्थना जो है उसका उत्तर भी तुरंत चाहिए। People should listen to us instantly. और जो लोग हैं वो हमारी तुरंत सुननी चाहिए। See, listen to me. Nothing happens instantly. मेरी बात को ध्यान से सुनो, कोई भी चीज तुरंत नहीं होती है। Unless it is released from God, it will not happen. और जब तक वो परमेश्वर से उंडेला नहीं जाता है तब तक कोई चीज तुरंत नहीं होगी। Waiting. When we say we wait upon the Lord, what does waiting means? और जब हम कहते हैं कि हम परमेश्वर पर रुके हुए हैं, रुकने का मतलब क्या होता है? When we say we are waiting on the Lord, जब हम कहते हैं हम परमेश्वर पर रुके हुए you know हैं, what we say? We say, Lord, we trust you for your time. और हम क्या कहते हैं? परमेश्वर आपके समय के लिए हम भरोसा रखते हैं। So waiting on the Lord means trusting the Lord. और परमेश्वर पर रुकना यानी परमेश्वर पर भरोसा रखना। Now, if you cannot wait, अगर आप रुक नहीं सकते हो, okay, you want everything urgently to happen. और अगर आपको चाहिए हर चीज तुरंत तुरंत हो आपके जीवन में, You know, you want your growth urgently to happen. और आपको चाहिए आपकी जो बढ़ोतरी है वो तुरंत हो जाए, Okay, you want the pulpit urgently. और अगर आपको पुलपिट भी तुरंत चाहिए, You want things urgently into your life. अगर आपको आपके जीवन में तुरंत सब चीज चाहिए, And there is no waiting on the Lord. और अगर परमेश्वर पर आप रुक नहीं सकते हो, You are not trusting the Lord for His time. आप परमेश्वर पर उसके समय के लिए भरोसा नहीं कर रहे हो। Amen. आमीन। Waiting time is the preparation time from God. और रुकने का समय यानी तैयारी का समय होता है परमेश्वर की ओर से। Amen. आमीन। I want to tell this prophetically this morning. और भविष्यवाणी के रूप से कहना चाहता हूँ इस सुबह, Waiting time is the preparation time. और रुकने का समय होता है यानी कि तैयारी का समय होता है। God never says no. He only asks us to wait for His right time so that we can be prepared when that situation comes. परमेश्वर कभी नहीं बोलते, लेकिन वो बोलते कि उसके समय के ऊपर रुकने के लिए ताकि वो हमें तैयार कर सके। Amen. आमीन। Many of us, we are always in hurry. और हम में से बहुत सारे लोग हमेशा जल्दबाजी में रहते हैं। One place to another, jumping like monkeys, always in hurry. और एक जगह से दूसरे जगह पर हम कूदते, हमेशा ऐसे बंदरों के समान हम कूदते हैं। And in that thing, और उस समय में what happens? क्या होता है? We tend to take wrong decisions और हम गलत निर्णय ले लेते हैं, because we don't want to wait. क्योंकि हमें रुकना नहीं है। We don't want to pray about it, हमें उसके लिए प्रार्थना नहीं करना but है। we just want to jump in the well because somebody else has already jumped. लेकिन हम उस कुएं में कूद जाते हैं क्योंकि दूसरा कोई उस कुएं में पहले से ही कूद चुका है। You are a foolish person if you compare your life with somebody else's life. और आप सबसे बड़े मूर्ख व्यक्ति होंगे अगर आप अपने जीवन की तुलना किसी और के साथ करते हो। You know, the Bible talks about this. बाइबल कहता है इस बारे में, Never compare your life कभी भी अपने जीवन की तुलना मत कीजिए, because God has made you unique. क्योंकि परमेश्वर ने आपको एक अलग रीति से बनाया है। Amen. Amen. God has made you unique. परमेश्वर ने आपको एक अलग तरीके से बनाया He है, has given you a purpose that only you can fulfill. और उन्होंने आपको एक उद्देश्य दिया है जो सिर्फ आप ही पूरा कर सकते हो। Are you understanding? क्या आप समझ पा रहे हो? When God made us, जब परमेश्वर ने हमें रचाया He made us unique और उन्होंने हमें एकदम अलग करके रचाया, and has given a purpose for everyone, each one of us. और परमेश्वर ने हम सभी लोगों को एक उद्देश्य दिया है, And your purpose, somebody else cannot come and complete it. और आपका उद्देश्य कोई दूसरा आके पूरा नहीं कर सकता है। I want to tell you this morning, मैं कहना चाहता हूँ इस सुबह, you fit exactly in your purpose. और आप अपने उद्देश्य में एकदम सही तरीके से बैठते हो, Nobody else can fit in your place. और कोई भी आपकी जगह पे नहीं जा सकता है। No matter how much ever people say they can do it. कोई बात नहीं, कितना भी लोग क्यों ना कहे कि वो कर सकते हैं। You know, some people, they have a habit of sitting on judgment seat. और कभी-कभी कुछ लोगों की आदत क्या होती है कि वो न्याय की कुर्सी पर बैठ जाते हैं। Okay, they are sitting on the throne and watching everybody. और वो सिंहासन पर बैठकर सभी कुछ देखते हैं। But I want to tell you, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, get up from that throne और उस सिंहासन से उठ खड़े हो जाओ, and try to do what others are doing. और वो कोशिश करो जो दूसरे लोग कर रहे हैं। Try it once. एक बार कोशिश I करो। challenge you, it will fail. मैं कहना चाहता हूँ, मैं चुनौती देता हूँ कि अपना कामयाब हो जाओ। So we cannot comment on anybody's purpose और of life. हम किसी के उद्देश्य, हम किसी के जीवन के उद्देश्य के पीछे हम कुछ नहीं बोल सकते। Are you understanding? क्या आप समझ पा रहे What हो? God has assigned you, only you can do that और best. जो परमेश्वर ने जिस चीज के लिए आपको नियुक्त किया है वो चीज सिर्फ आप ही अच्छा कर सकते हो। Don't become copycats in anything. और किसी भी चीज में कॉपी कैट मत बनो।
You can be inspired, और आप किसी से प्रभाव ले सकते हो, but you are still unique in Christ. लेकिन आप फिर भी आप अलग हो यीशु मसीह में, Now- खास हो यीशु मसीह में। Now, if you don't trust the Lord, अगर आप परमेश्वर पर भरोसा नहीं करोगे, you will not wait. आप रुकोगे नहीं। See, many people they say, I trust the Lord. देखो बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं परमेश्वर पर भरोसा रखता हूँ। Now, when you say, I trust the Lord, जब आप कहते हो कि मैं परमेश्वर पर भरोसा रखता हूँ, why can't you wait on His time? तो आप उसके समय पर क्यों नहीं रुकते हो? What is the problem? आपकी समस्या क्या है? That means, इसका मतलब ये है, only from your mouth you are saying, I trust the Lord. और सिर्फ अपने मुंह से आप कहते हो कि मैं परमेश्वर पर भरोसा करता हूँ, But from your heart, लेकिन आपके हृदय से you want to do what you want to do. आपको जो करना है आप वही करते हो। You're only saying because you know it looks good, you know, we hear it good. Yes, he's trusting the Lord. और सिर्फ आप कहते हो क्योंकि वो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है कि हाँ बाबा वो परमेश्वर पर विश्वास करता And है। then many other people will say, yes, spiritually, you know, he's saying, I'm trusting the Lord. और बहुत सारे दूसरे लोग कहेंगे अरे कितना आपने क्या, वो तो परमेश्वर पर भरोसा कर रहा You know, है। this guy, this girl, you know, he's saying that I will wait upon the Lord. और ये लड़का या ये लड़की कहता है कि मैं परमेश्वर पर रुकूंगा। The problem is only the words are coming, but there's no action. और समस्या ये है कि सिर्फ आपके मुंह से शब्द आ रहे हैं लेकिन कोई कार्य नहीं है। Same way, many people say, you know, I have repented of everything. और उसी तरह बहुत सारे लोग कहते हैं मैंने हर चीज का पश्चाताप किया है, Okay, I am born again. और मैं फिर से जन्मा हूँ। They don't know what born again means. और फिर से जन्मना का मतलब उनको पता नहीं है। You know, born again means your old is washed away. और born again का मतलब है कि आपका पुराना हर चीज है वो शुद्ध किया जाता You know, है, you're dead, your old is dead. और आपका पुराना हर एक चीज जो है वो मर चुका होता And है, you're taking new birth in Christ. और आप यीशु मसीह में नए जन्म को लेते हो। That means your old lifestyle, इसका मतलब आपका पुराना सब जो व्यक्तिगत जीवन है, old nature, पुराना स्वभाव old character, और पुराना चरित्र, everything needs to be dead. और हर एक चीज को मरना जरूरी है। Listen to me this मेरी carefully. बात को सुनो ध्यान से। You cannot be born again if you are not dead for your old things. और अगर आप फिर से जन्म नहीं ले सकते जब तक आप पुराने चीजों के लिए मरे नहीं हो। बोलने में क्या है? Everybody is born again today. Yes or no? हाँ या ना? Everyone is born again. और सभी लोग कब फिर से वो के कहते हैं कि वो फिर से जन्मे But if हैं। you are not dead to your old things, how can you be born again? लेकिन अगर आप पुराने चीजों के लिए अगर आपने अपने आप को मारा नहीं तो आपको फिर से जन्म कैसे बोल सकते हो कि आपका हुआ है? Coming just to worship will not make you born again. और सिर्फ आराधना करने आना उसका मतलब ये नहीं कि उसने आपको फिर से जन्म हुआ है। Okay? You're worshiping something else, now you're worshiping something else. That does not make you born again. और आप पहले किसी और की चीज की आराधना करते थे, अभी किसी और चीज की आराधना करते, उसका मतलब ये नहीं कि आपका जन्म फिर से हुआ है। You have to be born again through the Spirit of और God. आपको परमेश्वर की आत्मा से फिर से जन्म लेना है। What happens? क्या होता है? Your old spirit आपकी पुरानी आत्मा is dead. वो मर चुकी है। Now you're resurrected by the Spirit of अभी God. आपका पुनरुद्धार हुआ है परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। That's why the Bible says, इसीलिए बाइबल कहता है Behold, ठहरो I will make all things और new. रुक जाओ, मैं हर एक चीज को नया बनाऊंगा। Amen. आमेन। What is all things new? और सारी चीज नई का मतलब क्या है? All things means all things. और सारी चीज का मतलब है सारी चीज। Your very nature, आपका स्वभाव, your character, आपका चरित्र, everything, your walk. हर एक चीज, आपका चाल चलन। God is making all things new. परमेश्वर हर एक चीज को नया बनाता है। That is born again. उसी को कहते हैं फिर से जन्म लेना। Not gone again. और born again का मतलब वो नहीं, No, not gone again. और gone again जाना नहीं, You have to be born again, not gone again. और आपको born again होना है, gone again नहीं। Many of us, every day, you know, only we are born again from the time we read the word. और हम में से बहुत सारे लोग सिर्फ ऐसे born again होते जब तक हम वचन पढ़ते हैं। You know, half an hour, 15 minutes, 1 hour, 2 hours, you know, we are born again because we are reading the Bible, we are reading the word. और आधा घंटा, 15 मिनट, 1 घंटा जितना भी हम वचन पढ़ते हैं उतना ही समय हम फिर से ऐसे महसूस करते हैं कि हमारा फिर से जन्म हुआ है। Once the Bible is closed, you are gone again. और जब एक बार आपका बाइबल बंद हो जाता है आप फिर से gone again हो जाते I हैं। want to tell you this morning, मैं कहना चाहता हूँ इस सुबह, if you are born of God, अगर आप परमेश्वर से जन्मे हो you will trust His timing. और आप उसके समय पर भरोसा रखोगे, You have to wait upon the Lord. आपको परमेश्वर पर रुकना ही है। Amen. आमेन। To wait upon the Lord, you know what you are telling God, that not my will, but your will be done. और परमेश्वर पर रुकना इसका मतलब हम क्या कहते हैं? परमेश्वर को परमेश्वर हमारी इच्छा नहीं लेकिन केवल आपकी इच्छा पूरी हो। Let us turn to Psalms chapter 27, verse 14. और हम जाएंगे भजन संहिता 27 के 14 अध्याय में।
Psalms chapter 27 verse 14. और हम जाएंगे भजन संहिता 27:14 Psalms chapter 27 verse 14. और हम जाएंगे भजन संहिता 27:14 में। Yes, read it. यहोवा की बाट जोते रह, हियाव बात और तेरा हृदय ढूंढ रहे। हाँ, यहोवा ही की बाट जोता रहे। One second. हम पढ़ेंगे भजन संहिता 27:14। यहोवा की बाट जोता रहे, हियाव बात और तेरा हृदय ढूंढ रहे। Yes. हाँ, यहोवा ही की बाट जोता रहे। It says, wait for the Lord, और वो कहता है यहोवा की बाट जोते रहो be strong, और हियाव बांधो and let your heart take courage. और तेरा हृदय जो है वो ढूंढ रहे। And it says again, yes, wait for the और Lord. वो फिर से कहता है कि हाँ, यहोवा की बाट जोते रहो। क्या करना है हमको? हमें क्या करना है? Hello, we have to wait on the Lord. हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर पर रुकना है। Whom do we wait? हम किस पे ऊपर रुकते हैं? You don't wait on people. हम लोगों के ऊपर नहीं रुकते हैं। You don't wait for your circumstances to be changed. अपनी परिस्थिति को बदलने के लिए आप नहीं रुकते हो। You don't wait on your finances. अपनी आर्थिक स्थितियों पर आप नहीं रुकते हो। You don't, you're not dependent on anything. You are waiting, trusting, and depending on the Lord. किसी और चीज पर निर्भर नहीं करते हो, लेकिन आप भरोसा और विश्वास परमेश्वर के समय में करते हो। Amen. आमीन। It says, be strong. और वो कहता है कि हियाव बांधो। What does it take to wait on the Lord? और क्या होता है परमेश्वर पर रुकने के लिए? You have to be strong. आपको बलवंत होना जरूरी You है। can't be foolish. आप मूर्ख नहीं बन सकते You हो। can't be weak. और आप ऐसे दुर्बल नहीं रह सकते You हो। can't fall down. आप नीचे नहीं गिर सकते You हो। can't be under depression, under stress, under anxiety, because that is not how God made you. और आप चिंता, आप दुख, आप निराश में नहीं रह सकते, क्योंकि परमेश्वर ने आपको वैसे नहीं बनाया है। You and I are made in the image of God. और आप और हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। You and I are more than conquerors. और आप और हम विजय से बढ़कर है। No matter how much attacks come, और कोई बात नहीं, कितना भी वार क्यों ना आए, we are not going to get injured. और हमें ऐसे दुख नहीं, चोट नहीं पहुंचेगा। The devil is going to get injured. और शैतान जो है उसे दुख होगा, Because our life is hidden in Christ. क्योंकि हमारा जीवन परमेश्वर में छिपा हुआ We है। are not fighting the battle. और हम लड़ाई को नहीं लड़ रहे हैं। The moment you start fighting your battle, you will get injured. You will go through shame. You will go through pain. और जिस समय आप अपनी लड़ाई को लड़ना शुरू करोगे, आप शर्म में जाओगे, आप दुख से जाओगे। Many people ask, why I am going in shame every time? और बहुत सारे लोग पूछते हैं, मैं हर बार शर्म में क्यों जाता हूँ? Hey, you are fighting for yourself. You are fighting your battle. That's why you are going through shame. अरे तू अपने आप की लड़ाई अपने आप से लड़ रहा है, इसलिए आप शर्म में जा रहे हो। Why people are behaving like that? You are fighting your battle. और क्यों लोग वैसे से बर्ताव करते हैं? क्योंकि अपनी लड़ाई अपने आप लड़ रहे हो। You cannot wait patiently on the Lord. आप धीरज से परमेश्वर के ऊपर नहीं रुक सकते हो। From mouth we say patience, patience, but there is no patience. We are impatient. मुंह से हम कहते हैं मुझे धीरज, धीरज तो बहुत है, लेकिन हमारे अंदर धीरज बिल्कुल भी नहीं है। What it says, wait on the Lord. और वचन क्या कहता है कि परमेश्वर पर बाट जोते रहो, Be strong. हियाव बांधो, Let your heart take courage. और तेरा हृदय ढूंढ रहे। What is the first thing that fails? और पहला चीज क्या नाकामयाब हो जाता है? Our heart. हमारा हृदय। We are so impatient. और हमारे अंदर धीरज बिल्कुल भी नहीं है। Sometimes we are so immature that we want to do what our heart says. It is jumping, pumping. I don't know what happens. और कभी-कभी हम इतने नासमझ हो जाते हैं कि जो भी हमारा हृदय कहता है वो हम करते हैं, वो चाहे उछलता है चाहे पंपिंग होता है। Because our heart jumps, we also jump sometimes. क्योंकि हमारा हृदय उछलता है, इसलिए हम भी उछलते हैं कभी-कभी। And we don't know what is happening, but we just want to take that decision. और हम नहीं जानते कि क्या हो रहा है, लेकिन हमें उस निर्णय को लेना है। I want to tell this prophetically, those who are watching me. Wait on the Lord before you take any major step in your life, before you take any major decision in your life, because that decision can land you in the wrong place. मैं कहना चाहता हूँ, जो लोग हमें देख रहे हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि आपका जो निर्णय है हमेशा परमेश्वर पर भरोसा रख के कीजिए, क्योंकि अगर आपने गलत निर्णय नहीं लिया वो आपको एक गलत जगह पर ले जाएगा। You are deciding to move away from the Lord. और आप ऐसे निर्णय ले रहे हो कि परमेश्वर से आप दूर चले जाओ। I want to tell you, I want to encourage you this morning that God is not done with you. Wait on the Lord. मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर ने आपके ऊपर हार नहीं मारा है, रुको परमेश्वर के ऊपर। You want to leave your faith? आपको अपने विश्वास को छोड़ना है। I want to tell you this morning, wait on the Lord. मैं कहना चाहता हूँ इस सुबह परमेश्वर पर आप रुके
रुकिए। Some of you might even say, we are praying from so many days and nothing is happening. Wait on the Lord. और कुछ लोग कहते होंगे कि हम इतने दिन से प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन कुछ नहीं हो रहा। मैं फिर भी कहना चाहता हूँ परमेश्वर के ऊपर रुकिए Be strong. और बलवंत रहिए Let your heart take courage. और आपका जो हृदय है उसे धाड़स लेने दीजिए। Yes, wait on the Lord. और हाँ, परमेश्वर की बाट जोते रहो। Now when we wait on the Lord, जब हम परमेश्वर पर रुकते हैं, what do we tell the Lord? हम परमेश्वर से क्या कहते हैं? You know what? When we wait, जब हम परमेश्वर के ऊपर रुकते हैं indirectly we are saying to the Lord, और हम परमेश्वर से कहते हैं, indirectly we are saying to the Lord, और हम परमेश्वर से कहते हैं, I will not go on my understanding. और मैं मेरे खुद के समझ पर नहीं जाऊंगा, I will not go on my understanding. और मैं खुद के समझ पर नहीं जाऊंगा। Very important. बहुत ही जरूरी I है। want to tell you this morning. मैं कहना चाहता हूँ इस सुबह We tell the Lord हम परमेश्वर से कहते हैं that we will not go on our हम understanding. हमारे खुद के समझ पर नहीं जाएंगे। No matter whatever happens, कोई बात कुछ भी क्यों ना हो, we will not go on our और understanding. हम हमारे खुद के समझ पर नहीं जाएंगे। We will not work on our own flesh. हमारे खुद के शरीर पर हम नहीं रुकेंगे या निर्भर नहीं करेंगे। Amen. आमेन। We will not go on our own understanding. हमारे खुद के समझ पर हम नहीं जाएंगे। We will not go on our own flesh. हमारे खुद के शरीर के समझ पर हम नहीं जाएंगे। We will not trust on our own decisions. हमारे खुद के निर्णय पर हम भरोसा नहीं करेंगे। I will wait upon you. और मैं आप पर रुकूंगा। No matter how much expertise that you have in the field. कोई बात नहीं, आप कितने भी ऐसे अच्छे क्यों ना हो आपके खुद के क्षेत्र में, But लेकिन we are still going to wait on you. हम फिर भी आप पर भरोसा रखेंगे। No matter whatever happens. कोई बात नहीं, कुछ भी क्यों ना हो, But लेकिन we are still going to wait on you. हम फिर भी आपके ऊपर रुकेंगे। Amen. आमेन। Let's open Psalms 37:7. और हम जाएंगे भजन संहिता 37:7 में। Psalms 37:7. यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। Yes. उस मनुष्य के कारण न कुढ़ जिसके काम सफल होते हैं। What does it say? वो क्या कहता है? Rest in the Lord. और यहोवा के सामने चुपचाप रहे। क्या करना है हमको? हमें क्या करना है? This is what we have to do. ये चीज हमें करनी है। Don't open your dirty mouth, okay? और अपने Close your dirty mouth and just wait on the Lord. Rest in Him. और अपने मुंह को आप मत खोलो, अपने मुंह का चुपचाप रहो और उसके अंदर विश्राम करो। Some people only talk, but no walk. और कुछ लोग सिर्फ बोलते लेकिन चलते नहीं है। You see their life, no walking, only talking, unlimited talk और time. आप उनके जीवन को देखो, सिर्फ बोलते हैं लेकिन चलते नहीं है, अनलिमिटेड टॉकिंग। We have to be limited और हमें इसे थोड़े में बोलना है, because God is unlimited. क्योंकि परमेश्वर अनलिमिटेड है। The more we talk, जितना हम ज्यादा बोलेंगे we cannot walk. हम उतना नहीं चल पाएंगे। It says rest in the Lord. और वो कहता है यहोवा के सामने चुपचाप रहे। What do you and I do? आप और हम क्या करते हैं? We have to rest in the Lord. हमें परमेश्वर पर ऐसे विश्राम करना है। What is resting in the Lord? विश्राम का मतलब क्या है? Okay, in the gospel, when Jesus and the disciples were in the boat. सुसमाचार में जब यीशु मसीह और उसके चेले जो है वो नाव में थे, Okay, and the storm come in the sea and hits the boat. और जब उस समुद्र में तूफान आया, जब उसने नाव को ऐसे टक्कर मारा, What is the Bible saying there? बाइबल क्या कहता है वहाँ पर? Jesus was resting on the pillow. और यीशु मसीह जो है वो अपने तकिए के ऊपर सो रहे थे, विश्राम कर रहे थे, Sleeping. सो रहे थे। Storm is there. तूफान है, He's sleeping. वो सो रहे थे। Who were impatient? और जिनके पास धीरज नहीं था, The disciples. चेलों के पास, They got afraid वो डर गए and they went to Jesus and woke him up. और वो यीशु मसीह के पास गए, उन्होंने जगाया Said, Lord, don't you care about us? और उन्होंने कहा कि यीशु मसीह तू हमें देख नहीं करता है, The storm is hit. Get up. You don't care about us. और तूफान आया है कि तू हमारी देख नहीं करेगा, उठ जा। What did Jesus do? यीशु ने क्या किया? Got up, उठा rebuked that storm. और उस तूफान को डांटा। And the Bible says the sea was calm. और बाइबल कहता है कि जो पानी था वो थम गया। We forget that whatever we are going through, God is there in that. और हम सभी लोग जो है वो भूल जाते हैं कि जिस दुख से हम जा रहे हैं, परमेश्वर उसमें भी हमारे साथ है। Like the impatient disciples, we think that God does not care for us. और जो चेलों में धीरज नहीं था,
वैसे उनकी तरह हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमारी देखरेख नहीं करता है। But, just like that impatient disciple, we think that, we are going to drown. God is not going to take care of us. He is not bothered for our prayers. He will not listen to us. और जो चेले जिनके पास धीरज नहीं था, उन्हीं की तरह हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे सोचता नहीं है, हम ऐसे नीचे डूब जाएंगे, हम खत्म हो जाएंगे, सारे विचार आते हैं। I tell you, more than your parents. और मैं कहना चाहता हूँ आपके माता पिता से ज्यादा The Heavenly Father is concerned for you और and जो me. स्वर्ग के पिता है वो आपके और हमारे बारे में सोचते हैं। More than anybody in your life. और आपके जीवन में किसी से भी ज्यादा बढ़कर। Many people say, oh, you are not concerned. और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे तुम हमारे लिए सोचते नहीं हो। Hey, whether people are concerned or not concerned for you, God is concerned, right? और मैं कहना चाहता हूँ कि लोग आपके लिए शायद सोचते नहीं होंगे, लेकिन परमेश्वर आपके लिए सोचता है। He has a plan for you, correct? उसकी एक योजना है आपके लिए। Now the problem is you don't trust the Lord. अब समस्या ये है कि आप भी उस पर भरोसा नहीं करते The हो। problem is you don't trust His plan. और समस्या ये है कि आप उसकी योजनाओं पर भरोसा नहीं मेरे करते साथ हो। गलत हो जाएगा, we keep this tape recorder. और मेरे साथ गलत हो जाएगा, यही विचार को आप लेकर चलते हैं। If God is in control, अगर परमेश्वर आपके नियंत्रण, हर चीज के नियंत्रण में है, how can anything happen in your life? आपके जीवन में कैसे कोई चीज हो सकती है? But we have a problem in trusting. We don't have a problem in trusting people. Some of us, we are so blind, we can trust anybody, but we cannot trust God. और हम में से सभी लोग, इतने लोग ऐसे अंधे हो जाते हैं कि हम लोगों पर आसानी से भरोसा कर सकते हैं, लेकिन हम परमेश्वर पर भरोसा नहीं कर पाते हैं। Then we get slapped on both the sides. और फिर हमें ऐसे हमें थप्पड़ मिलता है दोनों गालों पे। We get cheated. हमें ऐसे धोखा मिलता है। Why? क्यों? Because you trusted man, but you didn't trust God. क्योंकि आपने मनुष्य पर भरोसा किया, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया। Waiting means trusting. और रुकने का मतलब होता है भरोसा करना। I will not go on my understanding. मैं मेरे खुद के समझ पर नहीं जाऊंगा। I will not work with my flesh. मैं मेरे शरीर के इस पर काम नहीं करूंगा। Sometimes the devil comes and creates so much of confusion. और कभी-कभी क्या होता है, शैतान आके इतनी गड़बड़ी को पैदा करता है आपके बीच में। Whatever you see, you will feel wrong every time. और जो भी आप देखते हो, हमेशा वही चीज आपको गलत ही लगती है। सामने वाला will give you sweet, जहर दिखेगा, because the devil is blindfolded. और अगर आपको कोई मिठाई देगा तो आपको वो जहर लगेगा। क्यों? क्योंकि शैतान ने आपकी आंख को बंद करके रखा है। Somebody is doing good for you, somebody is concerned for you. You cannot see that. Why? Blindfolded. और कुछ लोग जो है वो आपके लिए अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन आप वो नहीं देख पाते क्योंकि आपकी आंखें अंधी है। You are working in the flesh. आप शरीर में काम कर रहे हो। But this morning, this is what the Lord says. लेकिन इस समय परमेश्वर यही कह रहा है। Is the time that as mature people of God, we break that bondage of flesh and walk in the Spirit. और ये समय है कि हम समझदार बेटा और बेटी होने के नाते वो बंधन को तोड़ के हम आत्मा में चले। We need to have discerning. और हमें परखने की आत्मा होना बहुत जरूरी है। Discerning only comes when you depend on God. और परखने की आत्मा जब आती है जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। Many of us, whatever we see, it feels good. हम में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो हम देखते हैं वही चीज हमें बहुत ही आकर्षित लगती है। अरे देख इसको, ये अच्छा नहीं, ये अच्छा है। We feel good by seeing. और अरे ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा है, देखने से ही हम चीजों को एकदम आकर्षित ले लेते When हैं। you go inside, जब हम अंदर जाते हैं, then you will come to know what good and what bad it is. और फिर आपको पता चलता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। Never go by what you see. और कभी भी उस चीज पे मत जाओ जो आप देखते हो। Okay? That's what exactly Eve did. और वही चीज हवा ने किया। She looked at the fruit. और उसने उस फल के ऊपर देखा। It was looking good. वो बहुत ही आकर्षित, सुंदर दिख रहा था। Juicy apple. और बहुत ही रसीला ऐसे। Wow, very good, looking red. वाह, इतना अच्छा, इतना लाल। And she fell down. और वो गिर चुकी। I want to tell you, मैं कहना चाहता हूँ, keep what you see at the very last place. और जो आप देखते हो उसे एकदम आखिरी तक में रखो। First, ask the Lord what it is. पहले परमेश्वर से पूछो कि क्या है। Always pray, always discern. हमेशा प्रार्थना करो, हमेशा परखो। जो अच्छा दिखता है जरूरी नहीं है वो अच्छा है. Okay? What looks good is not necessarily good for you. और जो अच्छा है वो जरूरी नहीं कि वो आपके लिए अच्छा है। So I will wait upon you. This is what the decision that we have to take. और आज हमें ये निर्णय लेना है कि परमेश्वर, मैं आपके ऊपर रुकूंगा। Don't be impatient with God. परमेश्वर के साथ ऐसे impatient मत रहो। Because God has been patient with us. क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ धीरज में रहा है। Okay, if you take a notebook, अगर आप एक किताब ले लोगे,
write down all the rubbish and nonsense things that you have done from your childhood till now. और सारे जो ऐसे बेकार वाली बातें या जो भी बातें आपने की है बचपन से लेके अभी तक उसके ऊपर Okay, in लिखो। your school, in your college, after college, at your work, right? You know, list will be endless. और आपकी पाठशाला में, आपके कॉलेज में और आपके काम का जिधर भी आप लिख लो, जो कुछ भी लिख दो, जो आपकी जो लिस्ट होगी वो कभी खत्म नहीं होगी। Imagine how patient is God with us. और सोचो परमेश्वर इतना धीरज रखते हैं हमारे साथ। If I would be God, I would have taken stick and finished everybody. और अगर मैं परमेश्वर होता तो मैंने क्या किया होता? मैंने लाठी लेके सबको खत्म कर दिया होता। But God is God. लेकिन परमेश्वर परमेश्वर है। And that's why He is God, because God is love. और इसीलिए परमेश्वर परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। He always is so patient. And why He is patient? Because He loves us. और वो धीरज रखता है। वो क्यों धीरज रखता है? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। But this is the time. ये वो समय है। We cannot be patient. हम ऐसे पेशेंट नहीं बन सकते हैं। Okay? There's a level of patience that you and I need to go और through. एक ऐसे धीरज का स्तर होता है जिससे आपको और हमें जाना है। It's the time now to rise up. और इस समय कि हम उठ खड़ा हो जाए। बहुत बेटा बहुत patience कर लिया सब। It's the time to rise up now. और इस समय कि हम उठ खड़े हो जाए। This is the time to take that decision. और इस समय कि हम निर्णय ले ले। That Lord, enough of nonsense I have done in my life. Now I will only wait upon you. कि परमेश्वर बहुत मूर्ख वाली बातें हो गई मैंने मेरे जीवन में कर दी, अभी मैं उठ खड़ा हो जाऊंगा आपके लिए। Enough I wasted time, resources, money, people, everything. Lord, but now I will wait upon you. You guide my path. I will do whatever you ask me to और do. परमेश्वर बहुत हो गया, बहुत मैंने समय व्यर्थ कर दिया, बहुत पैसा मैंने व्यर्थ कर दिया, मेरे टैलेंट्स मैंने व्यर्थ कर दिया, लेकिन अभी मैं आपके ऊपर रुक कर भरोसा करके मैं फिर से उठ खड़ा हूँ। This morning you have to tell the Lord, Lord, I have been rusted from inside. और इस वक्त परमेश्वर को आपको कहना है, परमेश्वर मैं अंदर से सड़ गया हूँ। Okay, from outside you are strong iron, but inside you are rusted iron. And this is the time, God this morning, the Spirit of the Lord says, I am cleansing people, I am cleansing that rusty things from their life so that they can renew their strength. और बाहर से आप बहुत ही बलवान दिखते हो लेकिन अंदर से पूरी तरह से सड़ चुके हो, लेकिन परमेश्वर इस सुबह कह रहा है अपने लोगों को कि जो हर एक सड़ा हुआ पानी परमेश्वर उसे बाहर निकाल रहा है और एक नए बल को दे रहा है। This is the time that you break free from this rustiness in your life. और ये समय है कि अभी आप अपने जो सड़े हुए पन से आप ऐसे छुटकारा पाओ अपने जीवन से। Waiting on the Lord will build you up. और परमेश्वर पर रुकना आपको और भी बलवंत बना देगा। When we wait, we are more dependent on Him. और जब हम परमेश्वर पर रुकते हैं इसका मतलब हम परमेश्वर पर रुकते हैं, हम उस पर भरोसा करते हैं। One of the secret of growing in the Word is waiting upon the Lord. और एक भेद है जो हम परमेश्वर के वचनों, परमेश्वर पे हम बलवंत होते हैं, वो परमेश्वर के ऊपर रुकना है। How can you grow in the Word? आप वचन पर कैसे बढ़ोगे? Waiting on the Lord. परमेश्वर पर भरोसा रखते Because हैं। when situation comes, जब परिस्थिति आती है the most difficult thing is to have patience. और सबसे कठिन बात होती वो है हमारे अंदर धीरज रखना। And that's exactly what the Word teaches us. और वही चीज पर वचन हमें सिखाता है। Amen. आमेन। So wait, don't be impatient with God. और परमेश्वर के साथ धीरज बनाए रखो। God has been patient with us. परमेश्वर हमारे साथ धीरज बनाकर रखे He's हैं been gracious with us. और वो बहुत ही ऐसे दयावान रहे हैं हमारे You साथ। look at your life from where we were and how God has picked everyone up. और अपने जीवन को देखो कि आप कैसे थे, परमेश्वर ने कैसे हम सभी को ऊंचा उठाया How है। God has blessed us in every area. परमेश्वर ने कैसे हर एक क्षेत्र में हमें आशीषित किया है। How God is helping us to grow every day. परमेश्वर कैसे हमें हर रोज मदद करते हैं आगे बढ़ने के लिए। Instead of opening your mouth for complaining, you have to open for praises and thanksgiving. और अपना मुंह आप कुड़कुड़ाने से खोलने से अच्छा है कि आप परमेश्वर के लिए स्तुति आराधना के लिए अपना मुंह खोलो। Your growth in the Word will come when you depend on God. और आप परमेश्वर के वचन में आपकी बढ़ोतरी जब आएगी, जब आप परमेश्वर पर निर्भर रहोगे। See, nobody can take the Word and feed like that. Nobody can make you grow. देखो कोई भी वचन को लेकर ऐसे आपके मुंह तक नहीं ला सकता है, कोई भी आपको वचन को लेकर आपको बढ़ा नहीं सकता है। Word is there. वचन है आपके पास, Revelation is there. प्रकाशन भी है आपके It is पास। on you if you take that word and apply in your और life. वो आपके ऊपर है, वो वचन को आप लेकर कैसे अपने जीवन पे आप उसे डाल सकते हो। When you apply that word in your life, then only you will grow. और जब अपना वो वचन जो है अपने जीवन में अगर लगा देते हो तभी ही आप बढ़ोगे। See, the food is there. देखो खाना है, खाना प्लेट सब कुछ सजा है. Now when you eat that food, then only the body grows. और जब आप वो खाना अगर खाओगे तभी ही शरीर बढ़ेगा। When that food goes inside, when you digest that food, then only body grows. और जब वो खाना अंदर जाएगा, जब वो खाना हजम होगा तभी ही शरीर बढ़ेगा। So nobody can make anybody grow. Okay, listen to me और मेरी carefully. एक बात ध्यान से सुन लो,
कोई भी किसी को आगे नहीं बढ़ा सकता है। Word is there. वचन यहाँ पर है। It's the same word. और वही वचन है। Okay, same word preached. और वही वचन प्रचार किया जाता है। Revelation preached. प्रकाशन भी वही प्रचार किया जाता God है। is the same God. परमेश्वर वही परमेश्वर है। The Holy Spirit is the same Spirit. पवित्र आत्मा वही आत्मा है। It is on you how you take it, digest it and grow. और वो आपके ऊपर है, आप उसे कैसे ले लो, कैसे हजम कर सकते हो, कैसे आप बढ़ सकते हो। Amen. आमेन। Don't blame. Word नहीं मिला, word है, तुम खाया नहीं. ऐसे दोष मत लगाओ कि वचन नहीं मिला, वचन तो है लेकिन आपने उसे खाया नहीं, चखा Everything नहीं। is there. हर चीज है। You have to eat. आपने उसे खाना है। You have to grow. आपने बढ़ना है। We cannot blame anybody for the downfall or our growth. और हम किसी को भी दोष नहीं लगा सकते अगर हम नीचे गिरते हैं, अगर हम आगे बढ़ते हैं। You went down because you didn't eat the food. You don't know the word. आप नीचे गिर गए ताकि क्योंकि आपने नहीं खाया, आपको वचन नहीं पता है। You were not patient. You didn't trust the Lord. और आपने धीरज नहीं बरकरार रखा है, आपने परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया And if you है। are growing also, और अगर आप बढ़ भी रहे हो, it is your effort. वो आपकी मेहनत है। Yes or no? हाँ या ना? The word is there. वचन है। God is with you. परमेश्वर आपके साथ है। Who is against you? कौन आपके विरोध है? But if you don't put any effort in the word of God, how will you grow? लेकिन अगर परमेश्वर के वचन में मेहनत ही नहीं करोगे, मेहनत नहीं लगाओगे, तो आप कैसे बढ़ोगे आगे? बिना मेहनत का, even a dog on the road, a dog on the road. और बिना मेहनत का एक जो कुत्ता भी है जो रास्ते पर होता है, Even he goes and searches in the garbage. और वो भी जाके ऐसे जो कचरे में जाके अपने खाने को ढूंढता है। Even he takes that effort of taking 4 steps and seeing, how can he eat. और वो भी अपने 4 कदम को चलता है और वो खोज करता है कि वो कैसे खाना खाए। How much more efforts we should take to connect to God. और हम कितना मेहनत करना चाहिए परमेश्वर के साथ जुड़ने के लिए। We don't want to put any efforts, but we want all the results. और हमें कुछ मेहनत नहीं करना है लेकिन सारे हमें उत्तर चाहिए। This is our problem. ये हमारी समस्या है। No efforts, कोई मेहनत नहीं, no results. कोई हल नहीं। Okay? The results is equal to what effort you put in the kingdom of और God. उत्तर आपके जीवन में जब आता है, वो जब वो दर्शाता है कि आप कितना मेहनत डालते हो परमेश्वर के राज्य में। And when we put efforts, God sees that. जब हम मेहनत करते, जब हम परिश्रम करते, परमेश्वर वो भी देखते हैं। He sees our tears. He sees our efforts. वो देखते हैं हमारे आंसुओं को, वो सारी मेहनत को देखते He हैं। releases His grace. और वो अपने अनुग्रह को हम पे उंडेलते हैं। He helps us to walk into every difficult और path. वो हमारी मदद करते हैं कि सारे कठिन मार्गों पर हम चले। Then you can say, the Lord is with me. और फिर आप कह सकते हो कि परमेश्वर मेरे साथ You है। keep on doing nonsense thing and you're saying, Lord is with me. Lord is with me. How is it with you? और आप मूर्ख चीजों को करते हो, फिर आप कहते हो परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे साथ है। कैसे परमेश्वर आपके साथ रह सकते I want to tell you this morning, मैं कहना चाहता हूँ इस सुबह, it's a call for each one of us और ये बुलावट सभी लोगों के लिए है to come back from the nonsense. Many people, I feel in the spirit, they are separated, from the Spirit of God. They might read the word, but they are separated. This is the time God is calling you back into His kingdom. और आत्मा में मुझे महसूस होता है कि बहुत सारे लोग जो है वो वचन तो पढ़ते हैं लेकिन परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है वो उनसे दूर हो चुके। मैं कहना चाहता हूँ ये बुलावट जो है वो सभी के लिए है, परमेश्वर उन्हें फिर से बुला रहे हैं। This is the time God wants to और restore. ये समय है कि परमेश्वर फिर से हर चीज को जोड़ना चाहता He है wants to restore that relationship. और परमेश्वर को वो रिश्ते को जोड़ना है। Okay, He wants to restore that encounter that you had. और जो एनकाउंटर, जो मेल मिलाप आपका हुआ था, परमेश्वर को फिर से जोड़ना He है। wants to restore that first love. परमेश्वर को पहले प्रेम को फिर से जोड़ना है। Exodus 14:14. और निर्गमन 14:14 में हम जाएंगे। Let's read. आइए हम पढ़ेंगे। Exodus 14:14. और निर्गमन 14:14 और हम पढ़ेंगे निर्गमन 14:14। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, हाँ। इसलिए तुम चुपचाप रहो। Yes, let's read it once again. And I want you all to, mark this and read it और मैं together. चाहता हूँ कि आप सभी लोग अपने बाइबल में ये मार्क करें और एक साथ हम पढ़ेंगे। Okay, let's read it again, और please. आइए हम पढ़ेंगे निर्गमन 14:14। Yes. यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। The Lord will fight for you, and you shall hold your peace. यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा और तुम अपनी शांति बनाए रखो। कौन लड़ेगा? Will you fight? तुम लड़ोगे क्या? You will fight. और आप लड़ोगे।
The problem is we fight. और समस्या ये कि हम लड़ते हैं। Come on, tell yourself. The problem is, Lord, I fight. और अपने आप से कहिए, परमेश्वर समस्या है कि हम लड़ने जाते हैं। I don't allow you to fight. और मैं मौका नहीं देता हूँ परमेश्वर को लड़ने के लिए। Because I think I'm above God. क्योंकि मैं ऐसे सोचता हूँ कि मैं परमेश्वर से बढ़कर हूँ। That's why I can take all control. I can do anything. और इसलिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं हर एक चीज का नियंत्रण ले सकता हूँ। Father, that's why I fight. पिता, इसीलिए मैं लड़ाई करता हूँ। But what the word says? लेकिन वचन क्या कहता है? Who will fight for you? और आपके लिए कौन लड़ेगा? The Lord will fight for you. परमेश्वर यहोवा आपके लिए लड़ेगा। What we have to do when He's fighting? जब परमेश्वर लड़ते हैं तो हमें क्या करना है? When God is fighting, दो हाथ अपन भी साफ करने का क्या? We also will fight. हम भी लड़ेंगे? No, it says you shall hold your peace. नहीं, वचन कहता है कि इसीलिए तुम चुपचाप रहो। क्या रहने का है? चुपचाप। Okay? चुपचाप किससे? लोगों से नहीं। Hold your peace. अपनी शांति को बनाए रखो। Let God deal. परमेश्वर को हर चीज करने दो। Problem is you deal. समस्या है कि आप भी हर चीज से I am right. मैं सही हूँ। I am right 100%. मैं 100% सही हूँ। Only I can do this thing. सिर्फ मैं ही ये काम कर सकता हूँ। मैं, like you know, like the goat, we do it. और ऐसे भेड़ के समान हम करते हैं, मैं। But भेड़ के समान। but yes, what God says. लेकिन परमेश्वर क्या कहते हैं? तुम चुप रहो ना. I am fighting. You hold your peace. अपनी शांति को बरकरार रखो। Don't let your peace go away. आपकी शांति आप मत खो। You relax. आप शांत में रहो। You rest in me. आप मेरे अंदर विश्राम Take a करो। pillow and sleep because I am fighting your battle. और अपने तकियों को लेकर आप सो जाओ क्योंकि मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा You हूँ। don't dirty your mouth. अपने मुंह को आप मत गंदा करो। You don't come down on your character. और अपने चरित्र से आप नीचे मत आओ। You don't come down to any level. अपने स्तर से नीचे आप मत आओ। God is saying, shut up and I am fighting for you. परमेश्वर कहते हैं मुंह बंद करो और मैं तेरे लिए लड़ रहा हूँ। Who will do it? कौन करेगा? In today's day, who is going to fight for you? Who will stand for you? आजकल के समय में कौन आपकी लड़ाई करेगा? कौन आपके लिए खड़ा होगा? Your own people don't stand for you. Who will stand for you? और आपके खुद के लोग आपके साथ नहीं खड़े होते तो आपके लिए कौन साथ में खड़ा होगा? It is the Lord that will stand for you. और वो परमेश्वर है जो आपके साथ खड़ा होगा। God will protect your anointing. परमेश्वर आपके अभिषेक को सुरक्षा में रखेगा। No problem. People speak against anointing. God is fighting. कोई बात नहीं, अगर लोग आपके अभिषेक के विरोध बोलते हैं कोई बात नहीं, परमेश्वर फिर भी आपके लिए लड़ रहा है। No problem at all because we know God is in control of everything. कोई बात नहीं किसी भी चीज के लिए, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर हर चीज के नियंत्रण में है। But what we have to do, लेकिन हमें क्या करना है? you and I, आपने और हमने, we only have to do one thing. आपको सिर्फ एक ही चीज करनी है, To wait upon the Lord. परमेश्वर पर रुकना है। Hallelujah. हालेलुया। Waiting upon the Lord. परमेश्वर पर भरोसा करके रुकना है। Any decision, कोई भी निर्णय लेना I है, will pray, I will wait. मैं प्रार्थना करूंगा, मैं रुकूंगा। Anything, कोई भी चीज I will wait. मैं रुकूंगा। I will not go in hurry. मैं ऐसे जल्दबाजी में नहीं जाऊंगा I will not go in haste. और मैं ऐसे बहुत ही जल्दबाजी में नहीं कुछ करूंगा, But I will wait. लेकिन मैं रुकूंगा। Whatever happens, और जो भी कुछ होता है, no problem. People are against me. और कोई बात नहीं, लोग मेरे विरोध भी क्यों ना हो, No problem. Situation that is against कोई me. बात नहीं, परिस्थिति मेरे विरोध क्यों ना हो, No problem. The whole world is against me. कोई बात नहीं, पूरा जगत मेरे विरोध क्यों ना हो, I will not rush and take the decision. I will wait upon the Lord. और मैं जल्दबाजी में निर्णय नहीं लूंगा, लेकिन मैं परमेश्वर पर भरोसा करके उन पे रुक कर निर्णय को Because the लूंगा। word of God says, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, the Lord will fight for you. You hold your peace. और परमेश्वर यहोवा आपके लड़ाई को लड़ेंगे, लेकिन तुम अपनी शांति को बनाए रखो। You know why you don't have peace today? आपके अंदर शांति क्यों नहीं है आज? Because you are fighting yourself. क्योंकि अपने आप से आप लड़ रहे हो, For one piece, you are fighting. और एक पीस के लिए आप लड़ रहे हो, For one chicken piece, your whole piece is gone. और एक चिकन पीस के लिए आपको पूरी शांति आपने खो दी है। I want to tell you, मैं कहना चाहता हूँ, wait on the Lord. परमेश्वर पर रुकिए। Don't run. You know, it's not a marathon that you have to complete it. और ये कोई ऐसे दौड़ नहीं है कि आपको दौड़ मतलब भागना है और दौड़ना There is है, no competition going on. और ऐसे कोई कंपटीशन नहीं चल रहा This is है, one life that God has given. और ये एक ही जीवन परमेश्वर ने दिया है, And you and I are responsible for that. और आप और हम उसके जिम्मेदार है। Okay? Whatever we do, we are accountable for the God. जो भी हम हमारे जीवन में करते हैं, हमें उसका लेखा जोखा एक दिन देना है। Many people say, it is my life, I will do whatever और I बहुत want. सारे लोग कहते हैं कि मेरा जीवन है, मैं जो भी कुछ करना चाहूंगा मैं करूंगा इस जीवन में। किसने बोला तुम्हारा जीवन है?
Who gave you? Who put this seed that it is your life? और किसने ये बीज डाला है आपके अंदर कि आपका जीवन है? It's God's breath that is in us. और परमेश्वर की सांस है जो हमारे अंदर है। It's not our life. हमारा जीवन नहीं है। God has given us that life. परमेश्वर ने हमें वो जीवन दिया है। To do something, we have a purpose for that. और कुछ करने के लिए हमारा कुछ उद्देश्य है हमारे जीवन But में। many people, what we say, हमारा life है, we will do whatever we want. It is my life. और बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये मेरा जीवन है, हम जो भी कुछ करना चाहते हैं हम करेंगे कि मेरा जीवन है। मेरा है, कुछ मेरा नहीं है. Everything is of God, sir. और कुछ भी चीज आपकी नहीं है, हर एक चीज परमेश्वर की है। You yourself belong to God. और आप खुद ही परमेश्वर के हो। Amen. आमीन। Let us pray right now. आइए हम सभी लोग प्रार्थना करेंगे। Now, Father, in the name of Jesus, और पिता यीशु मसीह के महान नाम से this morning we thank you for this wonderful prophetic और word. इस बार धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस सुंदर भविष्यवाणी के शब्द के That लिए। yes, Lord, we have to wait upon you. कि हाँ परमेश्वर हमको आपके ऊपर रुकना है, भरोसा करना है। Yes, Lord, we will not go on our own understanding. हाँ परमेश्वर हम खुद के समझ पर नहीं जाएंगे। We will not go in our own flesh. हमारे खुद के शरीर के समझ पर नहीं जाएंगे। Flesh may say fight, शरीर कहेगा तू लड़ाई कर, but we will not do that. लेकिन हम लड़ाई नहीं करेंगे। Flesh may say backslide, leave the Lord. और शरीर कहेगा कि तू पीछे मुड़ जा परमेश्वर के। We will not do that. हम वो नहीं करेंगे। Flesh will say that leave the presence of God. और शरीर कहेगा परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़कर चला जा। Flesh will say go and sin. शरीर कहेगा जाके तू पाप कर। We are not going to do that. हम वो सब नहीं करेंगे। We are going to walk with the Spirit of God. हम परमेश्वर की आत्मा के साथ चलेंगे। From today, Father, आज से परमेश्वर I will not trust my decision. और मैं मेरे निर्णयों के ऊपर नहीं निर्भर करूंगा। I will only trust your decision. और मैं सिर्फ आपके निर्णय पर निर्भर करूंगा। Whatever you decide is the final stamp on my life. और जो भी आप मेरे लिए निर्णय लोगे वो आखिरी थप्पा होगा मेरे जीवन का। Father, today पिता आज I declare, मैं घोषित करता हूँ and Father, I declare today that we are going to wait upon you. और हम घोषित करते हैं कि हम आपके ऊपर हम भरोसा करके रुकेंगे। Lord, you have been so much, you have shown patience on our lives. प्रभु आप इतने धीरज में रहे हो हमारे जीवन में, इतना आपने धीरज दिखाया We हमारे just want to thank you for that. और उसका धन्यवाद देना चाहते हैं। No man was patient. और कोई मनुष्य हमारे लिए धीरज नहीं Nobody दिखाया। came and picked us up. किसी ने भी आकर हमें ऊंचा नहीं उठाया। Only you did it, Lord. सिर्फ आपने किया परमेश्वर। When we were falling, people were laughing on us. और जब हम गिर रहे थे लोग हम पर हंस रहे थे। When we were depressed, oppressed, Lord, people were laughing on us. और जब हम दुखी थे, जब निराश थे, लोग हम पर हंस रहे थे। But it is only you that has lifted our लेकिन head. तो आप है परमेश्वर जिसने हमारे सिर को ऊंचा किया है। The glory belongs to no man. और सारी महिमा किसी मनुष्य को नहीं जाता It है। only belongs to the Lord of Lords and the kings of और उस kings. राजा के राजा प्रभु के प्रभु को सारी महिमा जाती We है। are going to depend on you from today. और आज से हम सिर्फ आपके ऊपर निर्भर करने We वाले are going to हैं। wait upon you also और today. सिर्फ आज से आपके ऊपर भरोसा करेंगे Because Lord, परमेश्वर। according to Exodus 14:14, परमेश्वर निर्गमन 14:14 के वचन के द्वारा the Lord will fight for you. You hold on your और peace. परमेश्वर आपने लड़ेगा, आपकी शांति आप बरकरार रखो। Yes, Lord, you are going to fight for us. हाँ परमेश्वर हमारे लिए आप लड़ोगे। Our job is to hold on to the peace that you have given और us. हमारा काम क्या है? जो शांति आपने हमें दी उसके अंदर हम विश्राम Father, करेंगे। right now, those who are watching us online, पिता जो लोग हमें ऑनलाइन देख रहे and हैं wherever this video goes, Lord, Father, we cover everyone under the blood of और Jesus. जहाँ भी वीडियो जाएगा सभी लोगों को परमेश्वर तेरे लहू से ढकते हैं। Every breathing problem right now, we declare every breath, every heartbeat to be under the control of the Holy Ghost. और हर एक सांस लेने में समस्या, हर एक चीज जो हम घोषित करते हैं कि पवित्र आत्मा के नियंत्रण में आ जाए। God is healing breathing problems this morning. जो लोग जो जिनको सांस लेने में समस्या, परमेश्वर उन सभी को चंगा कर रहे Every हैं। power of the witchcraft. और हर एक जादू टोने का सामर्थ। I say there's a heavy bondage. Somebody watching us, there's a heavy bondage of witchcraft upon your life. और मैं देख रहा हूँ जो व्यक्ति हमें देख रहा है आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा जादू टोने का सामर्थ है। You know, your own people are behind you, and right now that curse is breaking. God is breaking that और from your आपके life. खुद के लोग जो है वो आपके पीछे पड़े और परमेश्वर उस श्राप को तोड़ रहा है आपके जीवन से It's breaking. और वो टूट रहा है। Every spirit of unsuccess in your और life हर एक असफलता की आत्मा आपके जीवन में right now is breaking in Jesus' name. और अभी वो टूट रही है यीशु मसीह के नाम में। Chains are breaking in Jesus' और name. जंजीर टूट रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। Chains are breaking now in Jesus' और name. जंजीरें जो है वो टूट रहे हैं यीशु मसीह के नाम Deliverance में। is happening right now in the name of और Jesus. छुटकारा हो रहा है अभी यीशु मसीह के The नाम power में। of God is ready to heal the sick and deliver you right और now. परमेश्वर का सामर्थ तैयार है हर एक बीमारों को चंगा करने के लिए।
Father, I thank you. I declare finances to be healed in Jesus' और name. धन्यवाद करते हर एक आर्थिक स्थितियां वो चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में। Father, wherever the devil has put the trap, Lord, Father, we reject that in Jesus' name. जहाँ भी शैतान ने अपनी योजना बनाई उसे हम नकारते डांटते यीशु मसीह के नाम We में। pray that every trap, everything that the devil has planned be exposed in the name और of हम Jesus. प्रार्थना करते हैं शैतान की हर एक योजना परमेश्वर को उसे प्रकट कर और उसे नष्ट करे यीशु मसीह के नाम में। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। We just bless your name for this word. और इस वचन के लिए आपके नाम को ऊंचा करते हैं। And Lord, we will wait upon you no matter whatever happens, we are going to wait on you. जो भी कुछ क्यों ना हो हमारे जीवन में आपके ऊपर हम भरोसा करके रुकेंगे। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। Give you all the glory. सारी स्तुति सारी महिमा देते हैं आप। Everything you be glorified. और हर एक चीज में आपके नाम की महिमा हो। Bless each one of us, Lord. Everyone who's connected online and watching us, और Lord. सभी लोगों को परमेश्वर तू आशीष दे। जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनको भी तू आशीष कर। And Lord, we shall hear testimonies after testimonies, the work that you are doing into their life. गवाहियों के बाद गवाही को सुनेंगे। जो काम आप उनके जीवन में कर रहे हैं वो हम हर एक चीज को सुनेंगे। Thank you, Lord. धन्यवाद परमेश्वर। In Jesus' name we और pray. यीशु मसीह के नाम से Amen. आमेन। Thank you all once again for joining us. और सभी को धन्यवाद कि आप सभी लोग जुड़े हमारे साथ। And we thank you for everything. May God bless you and keep you healthy and safe. और धन्यवाद कर सभी लोगों को आशीष करते हैं। परमेश्वर आपके स्वास्थ्य को अच्छा रखे और आपको सुरक्षा में रखे। God bless you all. परमेश्वर आपको आशीष